Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. And today we are going to study further in your chapter 2, that is the invisible living world beyond our naked eyes. And in this session we are going to talk about our connection to microorganisms. This session is in continuation to your previous session where we talked about how microorganisms were digesting food and giving us manure and biogas. So you have an idea now that how important are these microorganisms to us and how much important do they play a role in our daily lives. They're even giving us our fermented foods. How fermented food, students, is a byproduct that we get when microorganisms undergo fermentation. Pizza, idli, breads, cake, alcohol, these all are fermented foods. And how are we getting them? We are getting them through microorganisms. हमें manure और biogas मिल रहा था. We talked about this in the previous session. Today we are going to learn about a very important process, fermentation. Every food has an amount of carbohydrate, proteins, lipids, right? किसी में carbohydrate ज़्यादा हो सकता है, those are carb rich foods. किसी में protein ज़्यादा हो सकता है, they are protein rich foods. But every food has carbohydrate, has protein, has vitamins and minerals, has lipids and fats, correct? But इनका proportion different हो सकता है. उस फैट्स, उस कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीस्ट. They also need their nutrition, right? So what they do is they eat that sugar or carbohydrates and convert it into certain elements. And these elements can be either your gases, acids or alcohol. फर्मेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्मेंटेशन में कोई भी फूड लेते हैं, alright, that food has sugars or let's say carbohydrates in it. What microorganisms are going to do, it is going to convert this sugar or these carbs, ferment it and convert it into either alcohol or let's say an acid, right, or any gas. Alcohol is a byproduct of certain food that undergoes fermentation by microorganisms and giving us alcohol. कोई फूड लिया, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म डाला, दैट फूड विल ईट अप the sugars or the carbohydrates and it will convert that into alcohol. That's how we get our alcohol. Therefore, alcohol is a fermented food because it is going under fermentation. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम डो का. What are we going to do? We are going to take two bowls A and B and we are going to put flour in it. आटा उसमें डाल देंगे. आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो. Let's say we take 200 grams of flour in each the bowl and we are going to add a pinch of sugar in it, a treat for the microorganisms, right? And we are going to put yeast in it. Yeast is what? Yeast is a fungi. हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी. Yeast is a fungi, right? Yeast is a fungi. We added microorganism. Then we are going to knead the dough with warm water. Why warm water? Because microorganisms, as you all know, need an optimal temperature and condition to act. हमने मैन्योर में इसकी बात की थी कि अगर टेम्परेचर उनके हिसाब से नहीं हुआ तो वो काम ही नहीं करेंगे. सो वी विल नीड वार्म कंडीशंस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छी कब होती है? वार्म कंडीशंस में, राइट? मॉइस्चर्ड एनवायरमेंट में. सो वी आर गोइंग टू नीड द डो विद वार्म वाटर. वी आर गोइंग टू पुट अ डैम्प क्लॉथ ऑन इट and we are going to let it sit. And what we are going to observe? We are going to observe that there is a fluff in the dough where microorganism was put and where microorganism was not put, there was nothing. कैसे? देखो, A में हमने डाला था yeast. You will see this kind of texture, this fluffiness in this dough. B में हमने yeast नहीं डाला तो it will remain as it is. अब हो क्या रहा है? बोल ए में जिसमें ईस्ट था, डो राइजेस, बिकम्स फ्लफी एंड हैज अ डिफरेंट स्मेल. इट विल राइज, इट विल बिकम फ्लफी और इसका स्मेल भी
डिफरेंट होगा, बट बोल बी में जिसमें ईस्ट नहीं था, डो स्टेज द सेम, इट विल स्टे एज इट इज, जिसमें ईस्ट नहीं था। क्यों, क्या डिफरेंस है, मतलब सिर्फ ईस्ट का डिफरेंस है। फ्लावर इज सेम, वाटर इज सेम, राइट, एंड इवन द शुगर इज सेम। क्या डिफरेंस था इसमें, वी एडेड ईस्ट। तो ये कमाल किसने किया है, ईस्ट ने किया है। क्या किया है ईस्ट ने, इट अंडरवेंट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने आपको अभी बताया, शुगर्स का कन्वर्जन हो रहा है। सो व्हाट दिस ईस्ट विल डू इज, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। हमने गर्म पानी में जब नीड किया डो, तो इसको वार्मथ मिल गई, इट विल रेप्लिकेट मल्टीप्लाई। ये शुगर्स को कन्वर्ट कर करके खा खा के न्यूट्रिशन ले लेके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, दे आर ब्रेकिंग डाउन द शुगर, the sugar which we added in the flour, they are breaking it down and they are converting it into what, they are converting it into carbon dioxide, into alcohol, right? I told you alcohol हो सकता है, acid हो सकता है, carbon dioxide हो सकता है। So the fluff that you see in the dough is due to carbon dioxide. This gas will make the dough fluffy. एंड वो जो स्मेल आ रही थी डो से, वो क्यों आ रही थी, बिकॉज एल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, अ लिटिल बिट ऑफ एल्कोहल, नॉट एल्कोहल दैट यू सॉ इन द बियर, राइट? द एल्कोहल इज इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई यू गेट दैट डिफरेंट स्मेल और द डिफरेंट टेस्ट, राइट? अब हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने सारे यूजेस हो रहे हैं इसके, ठीक है। ये हमें फर्मेंटेड फूड्स दे रहा है। कौन कौन से फर्मेंटेड फूड्स दे रहा है, इट इज गिविंग अस द ब्रेड, केक और पिज्जा, राइट? द फ्लफ दैट यू सी इन द ब्रेड और इन द केक इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. The different smell in the dough while making was due to alcohol. Similar goes with the pizza base. It's fluffy. Why? Because we added microorganisms. It went into fermentation and it produced carbon dioxide that is giving its fluff to it. और एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस का। हमने अभी बात की ईस्ट की, करेक्ट? इट्स अ फंजाई. वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट लैक्टोबैसिलस. इट्स अ बैक्टीरिया. It is a bacteria. Lactobacillus is a bacteria that is found in curd. Lactobacillus एक बैक्टीरिया है जो हमें दही में मिलता है. What it do is, it will undergo fermentation to give us the different texture and smell. किस किस में यूज हो रहा है, इडली एंड डोसा बैटर में, भटूरा बैटर में. लैक्टोबैसिलस दही में होता है. दही बनाने में क्या यूज हो रहा है, इडली और डोसा. इडली और डोसा के बैटर में वी पुट कर्ड. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, इफ यू हैव सीन दिस मेकिंग, भटूरा के डो में भी वी ऐड कर्ड. कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस. व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रेक डाउन द शुगर्स in these foods and it will get its fluff by producing what, carbon dioxide, right? तो अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं लैक्टोबैसिलस की. अभी हमने ईस्ट की स्टडी की, वी एडेड ईस्ट इन द फ्लावर. नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू सी द मेकिंग ऑफ कर्ड. कर्ड में मैंने बताया ना लैक्टोबैसिलस होता है. तो अब हम कर्ड की मेकिंग देखेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है. So what are we going to do here is, we are going to take two bowls and in both the bowls we are going to put milk, but the milk will be all of different temperatures. एक में गर्म लेंगे, lukewarm लेंगे, एक में हम ठंडा लेंगे, cold लेंगे. अब हम इसमें क्या करेंगे, we are going to put curd in it. What we are going to put, curd in it in both the bowls. कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिल्क में कर्ड डाल देते हैं, वो पूरे मिल्क को कर्ड बना देता है. दैट्स हाउ कर्ड इज मेड. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी टेक टू बोल्स, वी एडेड मिल्क बट विद डिफरेंट टेम्परेचर्स, वी एडेड कर्ड इन इट. देन कीप बोल ए इन वार्म प्लेस एंड बोल बी इन अ कूल प्लेस. अगेन थोड़ा और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बोल ए को हमने वार्म प्लेस पे रखा जो ऑलरेडी ल्यूकवार्म मिल्क में था. बोल बी को हमने कूल प्लेस पे रखा जिसमें ऑलरेडी कोल्ड मिल्क था. एंड वी आर गोइंग टू लेट इट सिट फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट. क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, कर्ड डाला, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस. इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट मिल्क, इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द शुगर्स इन द मिल्क. मिल्क भी फूड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं.
पर क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है एंड यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर टू वर्क, क्या डिफरेंस दिखेगा आपको? यू विल सी दैट इन बोल ए मिल्क टर्ड इनटू कर्ड एंड इज अ लिटिल सार। मिल्क ए, बोल ए में जो मिल्क था वो था ल्यूकवार्म एंड वी इवन केप्ट इट इन अ वार्म प्लेस, सो दैट होल मिल्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड और उसमें सार टेस्ट होगा। दही का टेस्ट हल्का सा खट्टा होता है ना, क्यों होता है? बैक्टीरिया होता है उसमें, बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया एक बाई प्रोडक्ट बनाता है, इसके कारण कर्ड का टेस्ट सार होता है। दिस वी विल डिस्कस इट इन अ फ्यू मिनट्स, बट अभी के लिए बोल बी में कर्डलिंग नहीं हुई, इट डिड नॉट कर्डल्ड अप बट इट इज स्टिल गिविंग अ सार टेस्ट। इसमें कोल्ड मिल्क था, देयरफॉर टेम्परेचर सही नहीं था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो ग्रो नहीं करे, तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन नहीं हुआ, बट स्टिल थोड़े बैक्टीरिया थे, इट गिव्ड अ सार टेस्ट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस फर्स्ट ऑफ ऑल, right? It contains lactobacillus. What that lactobacillus do is it will convert the sugar lactose in the milk into lactic acid. You must have heard a term lactose intolerant. उसका क्या मतलब होता है? कुछ लोग डेयरी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उस डेयरी में होता है, क्योंकि मिल्क में होता है एक शुगर जिसका नाम है लैक्टोस। नाउ what lactobacillus will do is, इसी के नाम पे हमने इसका नाम रखा है, what lactobacillus will do is lactobacillus will convert lactose sugar into lactic acid. ये क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। मैंने बोला ना, बाय प्रोडक्ट में हमें अल्कोहल मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, एसिड भी मिला है, लैक्टिक एसिड। दिस विल गिव द कर्ड इट्स सार टेस्ट। इसी एसिड के कारण जो दही में खट्टापन है, दैट कर्ड इज सार, राइट? व्हाई? वो खट्टापन क्यों है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस ने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। किसको? लैक्टोस को। क्या हुआ? ये फर्मेंटेशन हुआ, करेक्ट? ग्रोज फास्ट इन वार्म कंडीशंस। अब कोल्ड मिल्क में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेम्परेचर सही नहीं था, तो लैक्टोबैसिलस डिड नॉट एक्ट, बट वार्म में इसको अपना ऑप्टिमल एनवायरनमेंट मिल गया, तो मिल्क में जो शुगर थी लैक्टोज, इट कन्वर्टेड इट इनटू लैक्टिक एसिड, उससे हमें हमारा कर्ड मिला और उस कर्ड का टेस्ट था सार, राइट? और कौन कौन से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव फंजाई, वी हैव प्रोटोजोआ एंड वी हैव एल्गी। बैक्टीरिया वी जस्ट टॉक्ड अबाउट लैक्टोबैसिलस, फंजाई वी टॉक्ड अबाउट ईस्ट, प्रोटोजोआ इज अ ब्रॉड कैटेगरी जिसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं। एल्गी ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, it is either multicellular, it can be unicellular, right? So these all are the types of microorganisms that we can observe in our daily lives. Now apart from these, we also have another bacteria called rhizobium. Rhizobium, students, is found in legumes. This plant that you see is a legume. Legume क्या होते हैं? This plant that you see is legume. And these nodules, can you see these structures? These are nodules. So rhizobium live in the root nodules of legume plants. This is a legume plant. इसके examples कौन कौन से हैं? Beans, peas, lentils. दालें, मटर, ये सब जो आप देखते हैं ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? लेग्यूम की कैटेगरी में। नाउ दीज लेग्यूम्स, इनकी रूट्स में ये नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स में कौन प्रेजेंट होता है? राइजोबियम। दिस बैक्टीरिया लिव्स इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में, इन नोड्यूल्स में दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। व्हाई इज इट प्रेजेंट? व्हाट इज इट डूइंग? It is fixing nitrogen. It is fixing nitrogen from air. It is trapping the nitrogen from air and helps plant grow naturally. आपने अगर देखा हो तो प्लांट्स में
फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। उन फर्टिलाइजर्स में क्या क्या होता है? उन फर्टिलाइजर्स में मेन कंपोनेंट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट? फर्टिलाइजर्स में यही कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। अब इन लेग्यूम्स के पास, इन लेग्यूम प्लांट्स के पास ऑलरेडी दे हैव रूट नोड्यूल्स जिसमें राइजोबियम प्रेजेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है राइजोबियम? ये बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट नेचुरली ट्रैप्स नाइट्रोजन। एन से याद रखिए, नोड्यूल्स ट्रैपिंग नाइट्रोजन। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट हेल्प्स लेग्यूम प्लांट्स ट्रैप नाइट्रोजन, व्हाट विल यू से? यू विल से राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है दैट ट्रैप्स नाइट्रोजन इन एयर फॉर दीज प्लांट्स। अब इनको नेचुरल फर्टिलाइजर मिल गया, एयर में नाइट्रोजन है, उसने नेचुरली इसको ट्रैप कर लिया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी। सो व्हाट आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डूइंग? दे आर हेल्पिंग इट ग्रो। नेचुरल फर्टिलाइजर मिल गया तो इनकी ग्रोथ में और हेल्प होगी। और इससे क्या क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल ऑल्सो। प्लांट को वो नाइट्रोजन मिल रहा है, सॉइल में नाइट्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट? वो नेचुरली ट्रैप कर रहा है तो सॉइल में नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, सॉइल नेचुरल फर्टाइल हो रही है। फर्टिलाइजर ऐड करेंगे उसकी जगह हमें नेचुरली राइजोबियम ये करके दे रहा है, तो उससे क्या होगा? फर्टिलिटी इंक्रीज होगी सॉइल की। अब ऐसा तो नहीं है कि फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए सारे ही लेग्यूम्स लगा दें, राइट? दालें, ये सब जो मटर है, ये सारे लेग्यूम प्लांट्स लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। दूसरी क्रॉप्स के साथ ये रोटेशन में लगते हैं। एक बार वीट लगा दिया, फिर नेक्स्ट क्रॉप लेग्यूम का लगा दिया, फिर नेक्स्ट क्रॉप राइस का लगा दिया, देन अगेन लेग्यूम लगा दिया, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ताकि सॉइल हेल्दी रहे, राइट? So what did we learn today? We learned role of yeast and lactobacillus in fermentation and role of rhizobium in legume plants. हमने इतने सारे बैक्टीरिया की बात की कि कैसे ये हमारी डेली लाइफ में काम आ रहे हैं। लैक्टोबैसिलस किस में आ रहा था? कर्ड मेकिंग में। ईस्ट किस में आ रहा था? ब्रेड मेकिंग में। राइजोबियम इज इंपॉर्टेंट फॉर लेग्यूम प्लांट्स. So let me ask you a few questions. Yeast grows well in which type of conditions? Cold, warm, dry, dark? Warm. It needs a warm temperature. The fermentation process carried out by lactobacillus is useful in making. What is lactobacillus making? It's making idli and dosa. Pizza, cake के लिए तो yeast use हो रहा था. Which microorganism lives in root nodules of legume plants? अभी just हमने पढ़ा है, कौन सा है? Rhizobium, right? It's present in the root nodules of legume plants. And what is it doing? It is trapping nitrogen. Why do farmers grow legumes in rotation with other crops? Because it naturally increases nitrogen in the soil. It traps nitrogen from air into the soil. That's why it is important, and it is acting as a natural fertilizer. So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying, and thank you very much.